بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بابا کی مجھ سے پہلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن بابا کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی، اس لیے بابا نے ان تینوں بیٹیوں کو گھر کے تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی بہنوں کی بڑی یاد آتی تھی، لیکن بابا وہاں کسی کو بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ بابا بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے اور ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ میں نے جا کر جب تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں پر پچھلے 10 سالوں سے میری بہنیں جو کر رہی تھیں وہ دیکھ کر روح لرز گئی۔ میرا نام حسین ہے اور میں بابا کی 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ میرے بابا کے ہاں مجھ سے پہلے 5 بیٹیاں ہوئی تھیں، لیکن جن میں سے 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، 3 بیٹیاں حیات تھیں۔ جب میں پیدا ہوا تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں، اور میری خوشخبری کے ساتھ بری خبر یہ آئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ مجھے پیدا کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ 2, 3, 4 مہینے بیمار رہیں اور پھر اس دنیا سے چلی گئی، اور میری بڑی بہن کافی بڑی تھی، اسی نے مجھے سنبھالا۔ لیکن جب میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک دن میری تینوں بہنیں کہیں غائب ہو گئیں۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بھی یہی بتایا اور ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی لڑکیوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ رشتہ دار ہم پر ہنستے بھی رہے اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کی۔ بیٹیوں کے سر پہ ماں نہیں تھی، باپ پیسے کمانے میں لگا تھا، لیکن میرے بابا کو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی میری بہنوں سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ ان کی کسی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، نہ ہی ان کو پیار کرتے تھے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے ایک دوسرے کے پہن کر ہی گزارا کرتی رہتی تھیں۔ مجھے اپنی بہنوں سے محبت تھی، اسی لیے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی، لیکن وقت گزرنے لگا اور میں بھی جوان ہو گیا۔ پر کچھ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ حمید کی 3 بیٹیاں ایک ساتھ ہی بھاگ گئی تھیں۔ ویسے تو میری زندگی بہت اچھی تھی، بابا بھی مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، پورے گھر میں صرف میرا ہی راج تھا۔ میری جیب میں پیسے ختم نہیں ہوتے تھے کہ بابا پھر سے ڈال دیتے تھے، اور میں خود بھی عیش کرتا، اپنے دوستوں کو بھی عیش کرواتا۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں ہی مجھے بابا نے بڑی والی موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ میں شکل و صورت کا اچھا تھا، اس لیے لڑکیوں کا بھی کافی فیورٹ تھا۔ لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ میں بھی لڑکیوں سے دوستی کرتا، ان سے باتیں کرتا، کوئی ملنے کے لیے بلا لیتی تو ملتا بھی تھا۔ آخری حد کبھی پار نہیں کی تھی، لیکن سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، لڑکیوں کو تحفے تحائف بھی دیتا ہوں، اور بس اسی طرح کی میری امیج بنی ہوئی تھی، جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں نے FA کر لیا تو بابا سے کہا کہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو بابا نے کہا پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خاندانی کاروبار ہے، تو نے ہی سنبھالنا ہے، اور کس نے سنبھالنا ہے۔ لیکن اب تو میں کاروبار کے لیے آفس بھی نہیں جایا کرتا تھا، سارا دن گھر میں آرام کرتا، ساری رات مستیاں کرتا، مجھے تو کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، ہمارے گھر میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ ایک دن مجھے وہاں کسی ہلچل کی آواز آئی تو میں نے توجہ نہیں دی، پر ایک دن میں نے وہاں بابا کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک تہہ خانہ جو اتنے عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں پر میرے بابا کھانا کیوں لے کر جا رہے ہیں، یا انہوں نے وہاں پر بھی مرغیاں پالی ہوئی ہیں؟ لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا، اور کھانا تو انسان والا ہی لے کر جا رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے باپ پر نظر رکھی اور مجھے پتا چلا کہ وہاں پر روز کھانا لے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں زیادہ تر گھر پر نہیں رہتا تھا، ہاسٹل میں ہی پڑھائی کرتا تھا۔ ایک دن بابا کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پتا چلا کہ دراصل میری بہنیں گھر سے بھاگی نہیں تھیں، بلکہ بابا نے ان کو گھر کے تہہ خانے میں قید کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے اگلے ہی دن بابا سے یہ بات کر دی۔ بابا نے کہا کہ شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ بابا ویسے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو وہاں کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری بہنیں ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بدنام کروایا، ان کو بھی بدنام کروایا، آخر کیوں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آج تک بھی لوگ ہمارے پیچھے باتیں کرتے تھے۔ پھر بابا نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے گھر کو خالی کر دیا، وہ ہمارے گھر کا حصہ تھیں، اگر وہ گھر میں ہوتی تو ان کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا، تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟
बाबा आखिरकार फट पड़े और बोले कि नफ़रत है मुझे बेटियों से, हाँ नफ़रत है मुझे, बहुत नफ़रत। मुझे तुम्हारी माँ से सिर्फ एक बेटा चाहिए था। मैंने शादी सिर्फ बेटे के लिए की थी, लेकिन उसने मुझे 5 बेटियां दे दी। अल्लाह की तरफ से 2 बेटियां इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये 3 मेरे सर पर नाचने के लिए बच गईं। और फिर इनके खर्चे, इनका सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं इनका वजूद घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि 5 साल में मैंने 5 बेटियां पैदा की और 5 साल तक मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ तेरी पैदाइश हुई, मेरा कारोबार इतना बढ़ गया कि आज तक संभाला नहीं जा रहा। इसका क्या मतलब है कि ये इनकी मनहूसियत है। मेरा बस चलता तो मैं इनकी जान ले लेता, लेकिन मैं इतना भी जालिम नहीं था, इसलिए इनको तहखाने में बंद कर दिया। मैंने अपना सर पकड़ लिया, यानी मेरी बहनें पिछले 10 साल से तहखाने में बंद थीं। वो वहाँ किस हाल में होंगी, किस तरह जी रही होंगी। ना उन्होंने सूरज देखा होगा, ना चांद देखा होगा, ना किसी से बातें कर सकती होंगी। बीमार भी होती होंगी तो वहीं पे पड़ी रहती होंगी। क्या हो रहा था उनके साथ? मेरे बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो कहते थे, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। मैंने बाप से कहा कि इससे अच्छा तो आप सच में उनको भाग जाने देते, कम से कम वो किसी से शादी करके किसी के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती। मेरे बाबा ने कहा कि मैं खुद ये चाहता था कि किसी तरह खुद मुसीबत टल जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा रही थी और उनकी शादी ब्याह पर पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। वो मेरी बेटियां हैं ना, मेरा हुक्म चलेगा उनके ऊपर। जो किया मैंने बिल्कुल अच्छा किया, वहीं पर रहें मेरी तरफ से। मेरी बड़ी बहन की उम्र शायद 20 साल थी, छोटी बहन 19 साल की और एक बहन शायद 17 साल की थी। मुझे मेरी बड़ी बहन की शक्ल अच्छी तरह याद थी, जिसने मुझे माँ बनकर पाला था। मुझे तो लगता था कि वो भाग गई है। मैंने उनसे भी नफ़रत नहीं की जब मुझे पता चला कि वो भाग गई हैं, लेकिन अब तो मुझे ये पता चल गया था कि वो कितने बुरे हाल में हैं। क्या अब मेरा खामोश रहना जायज़ था? मैंने सोच लिया कि बाबा के पास से चाबियाँ चुरा कर अपने घर वालों को आज़ाद कर दूंगा। ये कोई छोटा कदम नहीं था। इस तरह मेरे बाबा पूरे ख़ानदान में बदनाम हो जाते, क्योंकि अभी तो उन्होंने मेरी बहनों को बदनाम किया था, खुद को बदनाम नहीं किया था। रात को मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा और चाबी चुराने की कोशिश की, तो अभी चाबी मेरे हाथ में थी जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अच्छा ये सब चल रहा है तेरे दिमाग में, इज़्ज़त रास नहीं आई तुझको, बिगड़ गया है तू। मेरे बाबा जो सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत करते आए थे, आज अपनी ज़बान से मेरे लिए किस तरह के अल्फाज निकाल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि खबरदार जो तूने इस तहखाने के आस पास भी नज़र की, मैंने जो सहूलियात तुझे दी है ना सारी छीन लूँगा, तेरा मोबाइल बंद कर दूँगा, तेरा ख़र्चा बंद कर दूँगा। मैं हैरान और परेशान रह गया। बाबा ने कहा, उस तरफ नज़र भी ना आना मुझे। बड़ा आया अपनी बहनों का लाडला, कभी मुंह देखा है अपना? इस काबिल है तू? मैंने तुझे बनाया है जो तू है। ये जो तेरे दोस्त हैं ना, जो तेरे पीछे फिरते हैं, वो भी तुझे मुंह ना लगाते। मैंने कहा कि आपको अम्मी की कसम है। अबे चल, कैसी बातें कर रहा है, जा उसकी कसम दे रहा है जो पहले ही मर गई, दोबारा तो नहीं मर जाएगी, और ज़िंदा भी होती तो मैं उसकी कसम ना कबूल करता। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसके बाद से सोचने लगा कि अब्बा का असली रूप कितना बुरा है। वो मुझसे भी प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर मुझसे प्यार करते तो मेरी बात ज़रूर मान जाते। अपनी बहनों का ख्याल मुझे सताता रहता। फिर मैंने ये बात अपनी फुप्पो से की, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि मेरी बहनों को कैद कर रखा है। मैंने कहा कि बाबा को बेटियों से नफ़रत क्यों है? उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी एक बहन थी जो घर से भाग गई थी और फिर 2 साल के बाद बिन ब्याही माँ बनकर वापस आ गई थी। तुम्हारे बाप ने उसकी जान ले ली थी, तब से उसको बेटियों से नफ़रत है, और ये घर में कहता था कि मुझे भी मार डालो, नहीं तो मैं भी किसी के साथ भाग जाऊंगी। इन्हीं बड़े बोल की उनको सज़ा मिली और 5 साल तक उनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा हुईं। 5 साल तक लगातार तुम्हारी माँ से बच्चे पैदा करवाने की वजह से तुम्हारी माँ की सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर भी वो कुछ ना बोली, क्योंकि वो शरीफ ख़ानदान की औरत थी। यही सोचकर आई थी कि सारी ज़िंदगी शौहर के घर में गुजारनी है। तुम्हारी 2 बहनें इस दुनिया में नहीं रहीं, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार रहने लगी, और अब जब तुम पैदा हुए तो उसके 4-5 महीने बाद वो दुनिया से चली गई। तुम्हारा बाप एक जालिम इंसान है।
हम तो ख़ानदान वाले तुम्हारी वजह से उसको बुला लेते हैं ताकि तुम्हारा चेहरा देख सकें, वरना हम तुम्हारे बाप से कोई भी रिश्ता नहीं रखते। ऐसे इंसान से कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है? तुम्हारी माँ ने उससे मोहब्बत की, उसे क्या मिला? सारी ज़िंदगी उसने बीमारी में गुजार दी और उसके बाद भी इस दुनिया से चली गई। और जो तुम्हारी बहनें 3 घर से भाग गई हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके साथ रहती तो ये उन पर पाबंदियां लगा लगा कर उनको पागल कर देता। अच्छा हुआ भाग गई। जहाँ भी होंगी कहीं रह रही होंगी ना, किसी से निकाह कर लिया होगा। ख़ानदान की बच्चियां हैं, पता है। बस ठीक है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, हम तो दुआ ही करते हैं। मैंने आखिरी दफ़ा बाबा से मिन्नत की कि बहनों को बाहर निकाल दें, हम उनको कहीं और भेज देंगे, किसी और घर में रख लेंगे। आप उनको दारुल अमान छोड़ जाएं, अगर घर में नहीं रखना, लेकिन इस तरह कैद करके उनको जानवरों की तरह ना रखें। लेकिन मेरे बाप ने मेरी बात ना मानी और मुझे भी बहुत बातें सुनाई। मुझे दिन रात अपनी बहनों का ख्याल आता रहता था, क्योंकि मैं ही तो उनका मुहाफ़िज़ था। अचानक से ही मेरे अंदर का ज़मीर जाग गया था। मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बुरा काम करूँ और कल को मेरी बहनों के सामने मेरी बुराइयाँ आ जाएं और उनको मेरे किए की सज़ा मिल जाए, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि इस दुनिया में गलत काम की सज़ा ज़रूर मिलती है। एक दिन बाबा कोई बल्ब लगा रहे थे कि उनके पाँव के नीचे से स्टूल फिसल गया और वह ज़मीन पर गिर गए और फिर उठ ना सके। डॉक्टर ने कहा कि उनका आधा जिस्म बेकार हो गया है, क्योंकि उनकी कमर के निचले हिस्से में चोट आई है। इस वजह से अब ये कभी भी चल नहीं पाएंगे और अपने आधे जिस्म को हरकत भी नहीं दे पाएंगे। मेरे बाबा बहुत परेशान हो गए। सारी ज़िंदगी उन्होंने गुरूर और तकब्बुर में गुजारी थी। अब चारपाई पर पड़ गए थे। वो मज़ीद बीमार रहने लगे और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। एक फालज का अटैक हुआ और अब उनका एक हाथ भी बेकार हो गया था। अब उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मुझे कारोबार की समझ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कारोबार को कैसे संभालना है। हम रोज़ नुकसान कर रहे थे। इतना नुकसान हो रहा था कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। ये 3 महीने क़यामत जैसे महीने थे। मेरा बाप चारपाई पर पड़ा था और कारोबार मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए और मेरे पास बाबा के लिए दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन बहुत परेशान बैठा था, रोने को दिल कर रहा था। कभी ज़िंदगी में इतना सख्त वक्त पहले कभी नहीं देखा था। जो नहीं था बस आज मेरे अंदर का ज़मीन झंझोड़ गया। मैंने बाबा के हाथ से तहखाने की चाबी छीन ली। उनको पता था कि मैं तहखाना खोलने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जाकर तहखाना खोल दिया। बाबा चिल्लाते रहे कि पहले ही घर में अजाब आया है, ये मनहूस औरतें हैं, इनको बाहर निकालेगा तो जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने तहखाना खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी बहनें कितनी बुरी हालत में रह रही होंगी, यही सोचा था, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। उस तहखाने में बिस्तरों के अलावा कुछ भी नहीं था। साइड पर एक छोटा सा बाथरूम बना हुआ था, लेकिन मेरी बहनों की सेहत बिल्कुल ठीक थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई। 2 ने तो शायद मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन बड़ी बहन ने मुझे फ़ौरन पहचान लिया और आकर मेरे गले से लग गई। उसने कहा कि कैसे हो तुम ठीक तो हो? हम बुरी तरह रोने लगे। वो मंजर बड़ा ही अजीब किस्म का था, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। 10 साल के बाद मैं अपनी तीनों बहनों से मिल रहा था। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया कि बाबा की ऐसी हालत है। जिस शख्स ने उनको 10 साल तक यहाँ जानवरों की हालत में रखा था, वो फिर भी उसके लिए परेशान हो गई और जाकर बाबा को देखा, लेकिन बाबा उनको अभी भी धुतकार रहे थे। उसके बाद मैंने उनको बताया कि कारोबार ख़राब हो गया है। उनको उनके कमरे दे दिए गए। उनके लिए अच्छा सा खाना भी मैं लेकर आया। मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए। उनको सारी बात बताई कि मेरे बुरे हालात हैं। तो उन्होंने मुझे एक डब्बा दिखाया। उन्होंने कहा कि ये तुम रख लो, क्योंकि तुमने हमें आज़ाद किया है। मेरी बड़ी बहन साहिबा ने मुझे ये कहा। मैंने कहा कि इसमें क्या है? जब उसको खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब इस तहखाने में हम बंद कर दिए गए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, दिन रात रोते रहते थे। हमारे रोने की आवाज़ें साथ वालों ने सुन ली थी, जिनकी दीवार तहखाने की दीवार से मिली हुई थी। उनके घर में भी तहखाना था, पर वो उसे स्टोर की तरह इस्तेमाल करते थे। वहाँ पर एक आदमी अकेला रहता था जिसका नाम अली था, और मेरी बड़ी बहन की उम्र का ही था। उसने ये आवाज़ें सुन ली और वो दीवार थोड़ी सी तोड़ दी गई। अब मेरी बड़ी बहन उसी घर से बाहर निकलकर आया जाया भी करती थी और वहीं उनको खाने पीने की चीज़ें भी ला कर देता था। यहाँ तक कि उसने उनको कपड़ों की मशीन भी दी,
तय खाने में बैठकर मेरी बहनें कपड़े सिया करती थी और वो सारे मोहल्ले से कपड़े ले लिया करता था। उस शख्स ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। छोटी बहन ने कहा कि वो आप ही को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, और ये जो सारे पैसे हैं ना, हमने कपड़े सी कर ही जमा किए हैं, तुम इनको कारोबार में लगा दो, कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम लोगों को जिस शख्स ने कैद किया फिर भी तुम उसके लिए पैसे जमा करती रहीं, वहाँ पर बैठी रहीं, जब वहाँ से बाहर निकल सकती थी तो फिर वहाँ से भाग क्यों ना गई। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि हम ऐसे कैसे भाग सकते थे, हमें बाबा ने कैद किया था, हम भाग कर बाबा का नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे, हम बाबा को कोई दुख नहीं देना चाहते थे। वो हमसे नफ़रत करते हैं लेकिन हमें उनसे नफ़रत नहीं है। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और मैं आसमान की तरफ देखकर रोने लगा कि अल्लाह, तूने बेटियों के दिल किस तरह के बनाए हैं। मेरे बाबा ने उनके साथ इतना बुरा किया, फिर भी उनको बाबा की इज्जत की परवाह थी और वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने उन पैसों से घर की चीज़ें ली। मैं उन पैसों को कारोबार में लगा के ज़ाया नहीं करना चाहता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को वापस दिए। उसके बाद मैंने कारोबार को सही करने की कोशिशें की। मेरी बहनें भी आजकल मेरे बाबा का बहुत ख्याल करती थी, लेकिन जब घर में कोई आता था तो वो फिर से छुप जाती थी। उसके बाद मैं अली से मिला और उससे सारी बात बताई। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी बहनें बहुत बुरे हाल में थीं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो बहुत अच्छा इंसान था जिसने मेरी बहनों की इतनी मदद की थी। मैंने उसे कहा कि मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उसने कहा कि अगर मैं इजाज़त दूँ तो वो मेरी बहन से निकाह करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं तुम दोनों का निकाह करवाऊँगा, और मैंने उन दोनों का निकाह करवा दिया। सारे ख़ानदान को भी ये बात बता दी कि मेरी बहनें भागी नहीं थी, बल्कि उनको मेरे बाप ने कैद किया था। लेकिन रिश्तेदारों को ये भी कहा कि फ़िलहाल बाबा से इस तरह की कोई बात ना की जाए। उसके बाद घर में सुकून से हम रहने लगे। मेरी बड़ी बहन साइमा की शादी अली से हो गई। वो साथ वाले घर में ही रहती है और अभी भी मेरी बहनें घर में कपड़े सिया करती हैं, बल्कि अब तो मैंने उनको घर में एक बड़ा सा सिलाई स्कूल खोल दिया है जिसमें मोहल्ले की सारी लड़कियां उनसे कपड़े सीखने के लिए आती हैं। और जो पैसे उन्होंने जमा किए थे उसी पैसे के साथ मैंने पूरा सामान ख़रीदा है ताकि उनके पैसे उन्हीं के काम आए। कारोबार को भी मैंने संभाल ही लिया है और मुझे चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है। बाबा अभी भी चारपाई पर ही पड़े हैं। अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। मेरी बहनें भी उनका ख्याल रखती थीं। अब वो उनको कोई बुरी बात नहीं कहते। शायद आहिस्ता आहिस्ता उनको ये बात समझ आ गई है कि इंसान अल्लाह का मोहताज होता है, उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। और ये बेटियां तो आज उनकी खिदमत कर रही हैं। अब मेरे बाबा मेरी बहनों के सर पर हाथ भी रखते हैं और इतना कह देते हैं कि खुश रहो। मेरे बाबा भी शायद शर्मिंदा हैं, लेकिन उनकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए थी जो उनको मिली। अपने दूसरे नंबर वाली बहन के लिए भी मैं रिश्ता तलाश कर रहा हूँ क्योंकि उसकी उम्र भी शादी की हो गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने अपनी बहनों को आज़ाद करवाया और उनको उनकी ज़िंदगी वापस मिल गई। आज मेरी बहनें मेरा गुरूर हैं और मुझे उन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिला क्योंकि मैं 4 महीने का था तो उस दुनिया से वो चली गई। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी जिसने अपनी बेटियों की इतनी अच्छी तरबियत की, और अच्छी औरत का खून ही उसमें था, जिन्होंने बुरे वक्त में भी कोई कदम नहीं उठाया बल्कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को संभाल कर उस तय खाने में 10 साल तक बैठी रहीं। अच्छी माँओं की बेटियाँ अच्छी ही होती हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ बुरे से बुरे लोग होते हैं, जैसे कि मेरे वालिद साहब, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने बहुत जुल्म किया, और अच्छे से अच्छे लोग भी होते हैं जैसे कि मेरी बहनें, जिन्होंने इस जुल्म को बर्दाश्त किया और उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। वो जिस तरह से बाबा की फ़िक्र करती हैं, खिदमत करती हैं, ऐसा लगता है कि उनके दिल में बाबा के लिए ज़रा सी भी ख़लिश नहीं है। आखिर में यही कहूँगा कि अपनी बेटियों से नफ़रत नहीं करें। बेटियाँ तो रहमत होती हैं।